دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت گرد قسط نمبر 39۔ میرے خیال میں یہ گلوریا کا ساتھی ہے۔ اندھیرے میں ایک دوسری آواز سنائی دی۔ گلوریا کا ساتھی، جوناتھن نے حیرت سے کہا۔ یہ کامران ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے یہ وہی ہے، مگر ہمارے اس آپریشن کا علم تو گلوریا کو بھی نہیں تھا، جوناتھن نے کہا۔ بلکہ یہاں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا سوائے ہم 5 آدمیوں کے۔ کل سے فریڈی بھی غائب ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ اس کی طرف سے بھی کوئی اطلاع موصول نہیں ہو رہی، کوئی فون نہ کوئی کنٹینٹ بنتا ہے۔ بہت ہیرو ہے نا، جوناتھن نے زہریلے لہجے میں کہا۔ خود کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہے، انہوں ہم سے الگ رہے گا اور ایڈریس بھی نہیں بتائے گا کہ کہاں مقیم ہوں۔ اب مرتا ہے، تم بھول رہے ہو جوناتھن۔ فریڈی ٹیم کا لیڈر ہے، اس کا حکم ماننا ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ ہمیں یہ بتانے کا پابند نہیں کہ وہ کب اور کہاں موجود ہوگا۔ دوسرے آدمی کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا، شاید وہ بھی جوناتھن کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ہم اسے تلاش کریں۔ زندہ ہوگا تو خود ہی ہم سے رابطہ کر لے گا، مر گیا تو مجبوری ہے، جوناتھن نے تصدیق آمیز لہجے میں کہا۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس حرامزادی گلوریا کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا، وہ یہاں کے لوگوں کو بھی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ اب اس کامران کی مثال لے لو، جوناتھن نے اندھیرے میں مجھے ایک زوردار ٹوکر رسید کی۔ میں نے بمشکل تمام اپنی چیخ پر قابو پایا۔ جوناتھن دوبارہ بولا۔ اس حرامزادی نے پہلے اسے اپنے حسن کے جال میں پھانسا ہوگا، پھر اسے بھی سنڈیکیٹ سے توڑ لیا ہوگا۔ دوسرا آدمی وہ تیمور ہے۔ یہی بھی تو گلوریا کی ذہانت ہے کہ اس نے اس شہر میں بہترین آدمی اپنے ساتھ ملا لیے ہیں۔ بہترین آدمی؟ دوسرے نے حیرت سے کہا۔ ابھی تو تم نے کامران کو پہچانا بھی نہیں تھا اور اب تم اسے بہترین کہہ رہے ہو۔ میں اسے شکل سے بھی پہچان لیتا، مگر اندھیرے میں اسے غور سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ میں اسے ضرور پہچان لیتا۔ ان دونوں کی فائل وہاں ٹاپ پر تھی اور ان کی ترقی بھی ہونے والی تھی، جوناتھن نے کہا۔ چیف مقامی بات سے خوش نہیں ہے، وہ کامران یا تیمور میں سے کسی ایک کو یہاں کا سربراہ بنانا چاہتا تھا۔ زیادہ امکانات کامران کے ہی تھے۔ اس کی بھنک شاید مقامی باس کو مل گئی اور اس نے کامران کے خلاف لمبی چوڑی رپورٹ بنا کر بھیج دی۔ پھر کچھ کوتاہی کامران کی طرف سے ہوئی، جو مقامی باس کو اپنے الزامات میں وزن پیدا کرنے کا موقع مل گیا۔ بالآخر اس نے کامران کے قتل کے پروانے پر سائن کرا ہی لیے، مگر چیف نے اس کے باوجود یہ شرط عائد کی کہ اسے زندہ گرفتار کرنا۔ میں اپنے طور پر اس معاملے کی تحقیقات کراؤں گا۔ اگر کامران واقعی قصوروار ثابت ہوا تو اسے گولی مار دی جاتی، ورنہ چیف ایک بہترین آدمی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران گلوریا کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ مقامی باس کی حمایت سے سینڈیکیٹ پہلے کامران سے محروم ہوئی، پھر تیمور سے۔ گلوریا بھی اس کی نااہلی کی وجہ سے بچ نکلی۔ گاڑی پختہ سڑک پر چھوڑ کر اب کچا اور ناموار راستے پر جا رہی تھی۔ مجھے بڑی بری طرح جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں کبھی دائیں لڑکھ رہا تھا اور کبھی بائیں۔ پھر مجھے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دیا اور ساحلی علاقے کی مخصوص بو میری ناک سے ٹکرائی۔ تھوڑی دیر مزید چلنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھلا تو روشنی اندر آئی۔ جس گاڑی میں مجھے لایا گیا تھا وہ ٹویوٹا ڈاٹسن کی کوسٹر وغیرہ تھی۔ اس کی سلائڈنگ دروازے سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ پھر کسی نے میری ٹانگیں پکڑ کر پوری طرح اپنی طرف گھسیٹا اور بوری کی طرح کندھے پر اٹھا لیا اور چڑھائی کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ مجھے اٹھانے والا بلا کا طاقتور آدمی تھا۔ وہ میرے 210 پاؤنڈ وزنی جسم کو یوں اٹھائے چل رہا تھا جیسے کندھے پر کوئی وزن ہی نہ ہو۔
उसे कंधे पर लटका कर यूँ चल रहे हो जोनाथन उसके होश में आने का इंतज़ार ही कर लेते। इस वजह इतना वक़्त हमारे पास कहाँ है, जोनाथन ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो इतना वज़न उठाए हुए है। मैं अधखुली आंखों में सब कुछ देख रहा था। चाँद की दरमियानी तरीक़े थी, इसलिए चांदनी में हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। कुछ बुलंदी पर पहुंचकर जोनाथन ने एक हट के सामने ठहर गया और मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाली। दूसरे ही लम्हे हट का दरवाज़ा खुल गया। जोनाथन ने मुझे लेकर हट में दाखिल हो गया। वहाँ केरोसिन ऑयल का लैंप रोशन था। दरवाज़ा खोलने वाला भी कोई गैर मुल्की था। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत और घनी दाढ़ी थी। जोनाथन ने वहाँ पड़े बेड पर मुझे अनाज की बोरी की तरफ फेंक दिया। बेड के गद्दे पे अगर स्प्रिंग ना होते तो मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लगती। फिर वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, इस उल्लू के पट्टे को अभी तक होश क्यों नहीं आया? ये मुर्तार इतना नाजुक मिजाज तो नहीं है। तुम्हारा हाथ ही कुछ ज़्यादा ज़ोर से पड़ गया होगा, दाढ़ी वाले ने कहा। फिर वो चौंक कर बोला, फ्रेडी भी कोई खबर है? फ्रेडी के बारे में यही मरदूद बताएगा, और हमारे अलावा किसी को भी हमारे इस ऑपरेशन का इल्म नहीं था। अब फ्रेडी गायब है, इसका मतलब तो यह है कि फ्रेडी इन्हीं लोगों के कब्ज़े में है। मगर तुम्हारा क्या ख्याल है कि फ्रेडी ने ज़बान खोल दी होगी? दाढ़ी वाले ने बेचैनी से कहा। वो औरत जिसका नाम ग्लोरिया है, रिफ़ों की बनी हुई है, वो उसने किसी तरह से फ्रेडी की ज़बान खुलवाई होगी। जोनाथन ने जहरीले लहजे में कहा। वह यूं ही सिंडिकेट में इतने बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच गई थी। फिर उसने मेरी कलाई पकड़कर नब्ज़ देखी और बोला, नब्ज़ तो नॉर्मल है, तुम ज़रा एक गिलास पानी मिलाओ। इसका मुखातब दाढ़ी वाला था। उसने शायद वहीं जग में से पानी निकाल कर जोनाथन को दिया था, क्योंकि पानी गिलास में डलने की आवाज़ भी मैंने सुनी थी। जोनाथन ने गिलास में से पानी लेकर ज़ोर से मेरे मुंह पर छींटे मारे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता होश में आने की अदाकारी करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने आंखें खोल दी और इन्हें दिखाने के लिए गौर से इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। सामने जोनाथन का मकरूज चेहरा था। वो इस वक्त कैटरिंग कंपनी की यूनिफॉर्म में था। मैंने नकाहत ज़दा अंदाज में पानी मांगा और जोनाथन से बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दाढ़ी वाले ने मेरा सर थोड़ा सा ऊपर उठाकर मुझे पानी पिलाया। मेरे हलक का वाकई कांटे पड़ रहे थे। पानी पीकर कुछ सुकून सा महसूस हुआ। उसने कहा, फ्रेडी कहाँ है? जोनाथन ने पूछा। फ्रेडी? मैंने हैरत से कहा, कौन फ्रेडी? जोनाथन आगे बढ़कर मेरे मुंह पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मुझे एक मरतबा फिर चक्कर आने लगे और यूँ लगा कि जैसे मैं एक मरतबा फिर बेहोश होने वाला हूँ। ये यूँ इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगा, इसे उल्टा लटका दो। जोनाथन ने अपने साथ आने वाले को हुक्म दिया। उसने ये रस्सी भी खोल दी। अब ये हमसे भागकर कहाँ जाएगा? दाढ़ी वाला जल्दी जल्दी मेरी रस्सी खोलने लगा। वो मुझे खोलने के बाद उसने इस बारीक रेशमी रस्सी को छत के कुंडे से गुजारा और मेरे हाथ बांध कर इसका दूसरा सिरा खींचना शुरू कर दिया। मुझे उल्टा लटकाकर उसने वो रस्सी खिड़की की ग्रिल से बांध दी। मेरी जैकेट अगर नीचे से टाइट ना होती तो उल्ट कर मेरे मुंह पर आ जाती और वो मेरी जैसे पहले ही साफ़ कर चुके थे जेबें। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का था कि बर्फ़ानी चीते की चर्बी जोनाथन के कब्ज़े में चली गई थी। मैं घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर झूल रहा था। ये बताओ, जोनाथन बोला और सिगरेट का कश लगाता हुआ मेरे नज़दीक आ गया। फ्रेडी कहाँ? मेरा जवाब सुनकर जोनाथन अचानक जलती हुई सिगरेट मेरी गर्दन में मसल कर बुझा दी। बताओ कहाँ है फ्रेडी? वो गरज पर बोला। मेरे मुंह से अजियत भरी कराह निकल गई। हालांकि मैंने मुंह से निकलने वाली चीख को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर इसमें कामयाब ना हो सका। फिर उसने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार के मुझे कमरे के दूसरे सिरे में पहुंचा दिया। मैं झूलता हुआ वहां उसके पास पहुंचा तो उसने मेरे दोनों शाने पकड़े और मुझे तेज़ी से घुमाने लगा। मेरे पैरों में बंधी हुई रस्सी बल पड़ने लगे। ये रस्सी इतनी तन गई कि मुझे अपने पैरों का दौरान खून रुकता हुआ महसूस हुआ। इसने मेरे मुंह पर एक भरपूर थप्पड़ और मारा और अचानक छोड़ दिया। मेरा जिस्म फिरकी की तरह घूमने लगा। मुझे अपनी आंतें हलक में आती महसूस हुई। मैं बेख्तियार मुझे मतली आ गई। जब गर्दिश थी तो मैं बुरी तरह अबकाइयाँ लेने लगा। मेरा
सर बुरी तरह चकरा रहा था और ज़हन मफलूज होकर रह गया था। जोनाथन ने दोबारा सिगरेट सुलगाई थी और गहरे गहरे कश लेता हुआ बहुत गौर से मुझे देख रहा था। फिर उसकी मकरू आवाज़ मेरे कानों में आई, बताओ कहाँ है फ्रेडी? मैं किसी फ्रेडी को नहीं जानता, मैंने दांत पीसते हुए कहा। जोनाथन ने एक मरतबा फिर जलती सिगरेट मेरी गर्दन पर मसल दी। इस मरतबा ज़हनी तौर पर तैयार था, इसलिए अपना मुंह मजबूती से बंद कर लिया। मेरी अजियत भरी चीख सुनने की हसरत उसके दिल में ही रहेगी। मैं तुझे इस हालत में ज़िबा करूँगा, हरामजादे, जोनाथन बिफर कर बोला और जेब में हाथ डालकर छोटा सा चाकू निकाल लिया। देख, ये छोटा सा चाकू तो ही तेरा काम तमाम कर देगा कुत्ते। मैं तो तुझ पर अपनी एक गोली भी ज़ाया नहीं करना चाहता। शेर अगर बंधा हुआ हो तो कुत्तों के अगीर पिल्ले भी उछल उछल कर इस पर भौंकते हैं, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। तो खुद को आयरन मैन समझता है, मर्दों की तरह मुझसे मुकाबला करके देख ले। तुझ में गीले कपड़े की तरह ना तुझे मैंने निचोड़ कर रख दिया तो फिर कहना। मैं उसे इश्तियाल दिलाकर खुद को आज़ाद कराना चाहता था। मेरी बात सुनकर वो पागलों की तरह हंसता हुआ बोला, फिल्म की किस्म की बातें मत करो, मुझे फ्रेडी का पता बताओ। मैं जानता हूँ फ्रेडी कहाँ है, मगर बताऊँगा नहीं, मालूम कर सकता है तो कर ले। मैंने फिर उसे छेड़ा। उसने अचानक चाकू के बारीक फल से मेरी गर्दन पर एक लकीर खींच दी। देखता हूँ कब तक तू ज़ुबान नहीं खोलता। फिर वो दाढ़ी वाले से मुखातब हुआ, नमक लाओ। दाढ़ी वाला दूसरे कमरे में छोटी सी एक प्लेट में नमक ले आया। जोनाथन ने नमक की चुटकी भरी और फिर मुझसे पूछा, बताओ फ्रेडी कहाँ है? मैंने सख्ती से होठ खींच लिए। जोनाथन ने चाकू निकालते हुए ज़ख्म पर अचानक नमक मल दिया। मेरे मुंह से एक मरतबा बेसाख्ता चीख निकल गई। ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का मुहावरा तो मैंने बहरहा सुना था, मगर मैं तजर्बे से पहली मरतबा गुजर रहा था। बताओ कहाँ है फ्रेडी? वो धाड़ कर बोला। अपना हर अरबाज माले, मैंने तल्ख लहजे में कहा, मगर फ्रेडी का पता नहीं बताऊंगा। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, मुझसे मर्दों की तरह बात कर, मेरे हाथ पैर खोल दे। अगर तूने मुझे जेर कर दिया तो मैं तुझे फ्रेडी का पता बता दूंगा। जोनाथन चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। इसे खोल ही दो, मैं इसकी ये हसरत भी पूरी कर देता हूँ। अगर ये मजबूर होकर बैठना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दाढ़ी वाले ने रस्सी की बंदिश ढीली की। जोनाथन ने दूसरे साथी से पकड़ा और फर्श पर डाल दिया। फिर उन्होंने मेरे पैर भी खोल दिए। मैं फर्श पर पड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। मेरी गर्दन में इन जगहों पर शदीद सोजिश हो रही थी जहाँ जहाँ जोनाथन ने सिगरेट मसले थे या चाकू से चरका लगाकर इसमें ज़ख्म पर नमक छिड़का था। उसे पानी वगैरह पिलाकर ताज़ा दम करो ताकि कुछ देर तो मेरा मुकाबला कर सके, जोनाथन ने कहा। दाढ़ी वाले ने मुझे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मैं दोबारा फर्श पर ढेर हो गया। सर भी अभी तक इतने शदीद दर्द हो रही थी और चक्कर आ रहे थे कि उठने को दिल नहीं चाह रहा था। जोनाथन खिड़की के पास खड़ा हुआ था। उसने मुड़ के मुझे देखा और मुझसे कुछ कहना ही चाहता था कि यके बाद दिगर 2 फायर हुए। खिड़की का शीशा टूटने की आवाज़ के साथ ही जोनाथन की चीख सुनाई दी। वो औंधे मुँह गिर गया। दाढ़ी वाला और जोनाथन का दूसरा साथी तेज़ी से ज़मीन पर लेट गए। दाढ़ी वाले के हाथ में मुझे जदीद किस्म की दूर मार राइफल नज़र आई। जोनाथन के दूसरे साथी ने जेब से .3 का रिवाल्वर निकाल लिया। 2 फायर करने के बाद बाहर खामोशी छाई हुई थी। मुझे भी इस दौरान में कुछ सांस लेने का मौका मिल गया था। हालत में अब पहले के मुकाबले में बेहतर थी। चक्कर भी कम आ रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में खिसकता हुआ आगे बढ़ा और वहाँ मेरी नज़र एक कोने में पड़ी हुई इन चीज़ों पर पड़ी, अपनी चीज़ों पर पड़ी। इनमें सिवाय मशीन पिस्टल की हर चीज़ मौजूद थी। मेरा पर्स, निविया की वो डब्बी जिस पर बर्फ़ानी चीते की चर्बी थी, मेरी पॉकेट डायरी, चाबियों का वगुच्छा जो बवक्त ज़रूरत मेरे काम आता था। मेरी तलाशी लेने के बाद उन्होंने सिर्फ मेरा मशीन पिस्टल अपने कब्ज़े में कर लिया था। बकिया चीज़ों को बेकार समझकर वहीं फेंक दिया था। मैंने गैर महसूस तरीके पर हाथ बढ़ाकर तमाम चीज़ें उठा ली और अपनी जैकेट की जेबों में ठूंस ली। पर्स की जसामियत से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग अब उसे भी खाली कर चुके हैं
कैरोसिन लैंप की मध्यम सी रोशनी जो जोनाथन के दोनों साथी भूतों की तरह नज़र आ रहे थे, मैं गैर महसूस तरीके पर खिसकता हुआ एक ऐसी जगह चला गया जहाँ से जोनाथन के रिवाल्वर पर कब्जा कर सकूं। वो अभी तक औंधे मुँह पड़ा था, न जाने वो बेहोश हो गया था या मर गया था। गोली उसे लगी ज़रूर थी क्योंकि उसके जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा था। दाढ़ी वाले ने थोड़ा सा ऊपर उठकर खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। फ़ौरन ही एक फायर हुआ और खिड़की का एक शीशा टूट गया। मुझे इल्म नहीं था कि इस हट के बाहर निकलने का और कोई रास्ता भी है या नहीं। इतना इल्म था कि वहाँ 2 कमरे थे, मुमकिन है 3 हो, क्योंकि दाढ़ी वाला दूसरे कमरे से नमक की प्लेट लेकर आया था। मैंने सोचा अगर मैं रेंगता हुआ किसी तरह दूसरे कमरे में चला जाऊं तो फरार होने के ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि दूसरे कमरे में अंधेरा था। फिर मुझे एक और ख्याल आया, यह ना हो कि बाहर निकलते ही हमलावर मुझे जोनाथन का साथी समझकर गोली मार दे। खैर देखा जाएगा, मैंने सर झटक कर सोचा और किन अखियों से जोनाथन के साथियों की तरफ देखता हुआ। इन लोगों ने अटका दरवाज़ा खोल दिया था, फिर इसकी आड़ में बैठकर फायरिंग कर रहे थे। दोनों की तरफ से फायरिंग का तबादला होने लगा। समंदर की लहरों का शोर और फायरिंग की तड़तड़ाहट से वहाँ का माहौल अजीब हो गया था। फ़ज़ा में समंदर की बू के साथ साथ बारूद की बू भी शामिल हो गई थी।